sir. Welcome, ma'am. And I would like to take this opportunity to introduce ma'am to you all. Ma'am Shilpi Goel is a well-known dietitian from Raipur with over a decade of experience in the field of nutrition. Her key expertise lies in the management of lifestyle and metabolic diseases like obesity, diabetes, hypertension, thyroid, and PCOS. I guess it's polycystic ovary syndrome. Her focus is on preventive methods and holistic health. She has her own nutrition clinic with the name Inspire Wellness. She is also a visiting consultant at Apollo Clinics Raipur. She's been a topper from Rajkumar College Raipur and a gold medalist from Nagpur University. She completed her master's in food and nutrition dietetics from Baroda and internship from Mumbai. Currently, she is leading the Indian Dietetic Association Chhattisgarh chapter as president. She keeps appearing on various TV channels, radio and print media. Her articles regularly appear in Dainik Bhaskar as well. She has won the title of Mrs. Chhattisgarh at Mrs. Asia pageant in the year 2017. She is a positive person who loves listening to music, meeting people and reading books. She is blessed with 2 daughters. Her husband, Mr. Tarun Goel, is the director at Steel Mill Group. And she has her own YouTube channel with the name Dietitian Shilpi Goel Inspire Wellness, which has helped thousands of people lose weight effectively. Her esteemed clientele includes Dr. Raman Singh and his family. Ma'am, knowing this, we are really looking forward to your sharing and how do we lose weight and keep fit really. Thank you so much for being with us and sparing your time to be on this class today. Thank you, ma'am. I welcome you on the stage to share your tips on nutrition and health. Thank you. Thank you very much. Thanks, ma'am, for that warm welcome and the kind introduction. First of all, very happy Women's Day to all of you present here. And आज का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारी हेल्थ पे है और अगर वुमेन फिट है तो पूरी फैमिली फिट है. जैसा कि सर बोल ही रहे थे कि जितने भी पीछे बैठे हैं सब अगर आगे आ जाएंगे तो बहुत मजा आएगा क्योंकि ये इंटरैक्टिव सेशन होने वाला है हमारा. बहुत थोड़ा सा टाइम है, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हम लोग जानने वाले हैं न्यूट्रिशन के बारे में. तो जितने भी लोग पीछे हैं सब फटाफट से आगे आ जाएं, तब तक हम अपनी स्लाइड शो को शुरू कर देते हैं. अगर आप सब अपनी चेयर को या अपने सीट्स आगे बढ़ के बैठेंगे तो बहुत मजा आएगा हम सबको. Okay, so as you can all see here that right diet the best medicine. तो सबसे बड़ी मिस्टेक जो हम करते हैं वो ये है कि हम अपनी डिसीज को ट्रीट करने के लिए मेडिसिन का सहारा लेते हैं. आप जानते हैं आइसबर्ग, तो जो भी सिम्टम आपको अपीयर होते हैं वो केवल आइसबर्ग है, वो केवल सरफेस पे दिख रही है, उसके नीचे बहुत बड़ी प्रॉब्लम लाई कर रही है. उसको हम कभी भी उस तक पहुंचने की कोशिश नहीं करते हैं, उसको ट्रीट नहीं करते हैं, हम अपने सिम्टम्स को ट्रीट करते हैं. आज किसी को खांसी हो रही है, सर्दी हो रही है, वो खाली उसको ट्रीट करने की कोशिश करता है, लेकिन जो नीचे पूरी प्रॉब्लम, और हमारी बॉडी जल्दी से सिम्टम्स नहीं दिखाती है जब तक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ नहीं जाती है. सो ऑलवेज थिंक दैट राइट डाइट इज द बेस्ट मेडिसिन. अगर आपकी डाइट सही है, अगर आपकी लाइफस्टाइल सही है तो आपको किसी भी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो मैं आज बैठ के सोच रही थी कि क्या चैलेंजेस हो सकते हैं टीचर्स के साथ, बिकॉज एज पर वन स्टडी ओबेसिटी हैज बीन कंसिडर्ड एज अ मेजर प्रेवलेंस. जो ओबेसिटी का है वो टीचर्स में है, तो उसके क्या कारण हो सकते हैं. सो आई वुड लाइक यू टू टेल मी कि अगर आज आप लोगों को कोई भी हेल्थ इशू है उसकी क्या वजह हो सकती है. क्या आप में से कोई कंट्रीब्यूट करना चाहेगा? उसकी क्या वजह हो सकती है कि टीचर्स का वेट कैसे बढ़ जाता है, या टीचर्स को जो हेल्थ इश्यूज रहते हैं वो किस कारण से रहते हैं? एनीबॉडी? यस. Less physical activity. Yeah, less physical activity. Yes. Anybody? स्ट्रेस तो रहता ही है, सर के सामने अभी कोई बोल नहीं रहा है. तो स्ट्रेस इज वन रीजन. अनप्लान्ड मील, isn't it? आप लोगों को प्लानिंग नहीं होती है. जब आप 4 या 5 बजे घर पहुंचते हैं
उस समय एक्सेसिव हंगर हो जाती है, उस समय हमारी प्लानिंग नहीं होती कि हमें नेक्स्ट क्या खाना है, टायर्डनेस हो जाती है, हमारा किचन में इन्वॉल्वमेंट कम हो जाता है, हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं, isn't it? Lack of sedentary, yes, lack of activity, sedentary lifestyle is one thing. इसके अलावा और क्या हो सकता है जो टीचर्स के साथ स्पेशली चैलेंज है? लैक ऑफ स्लीप, यस, रात को भी सपने में एग्जाम्स और उसके करेक्शंस और क्या हो सकता है? सो एक्सेसिव टी इनटेक, डोंट यू थिंक? हम टीचर्स कंटिन्यूस टी कॉफी का इंटेक करते रहते हैं, हमारी वर्क प्लेस में एनी टाइम हमें टी और कॉफी ऑफर होती रहती है और हम इतने जेंटल हैं, इतने काइंड है कि हम मना नहीं कर पाते हैं, isn't it? तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या और चीजें हो सकती हैं। सो वेट गेन इज अ रूट कॉज फॉर मेनी प्रॉब्लम। आज आपको जो भी हेल्थ प्रॉब्लम है, अगर आप उसके रूट में जाके देखेंगे तो वेट इज वन ऑफ द इश्यूज। अब आपको लग रहा होगा कि नहीं मैं तो दुबला पतला हूँ, सर सोच रहे मैं तो दुबला पतला हूँ, अभी अभी मुझे तोमर सर मिले, बोले मुझे जरूरत नहीं, मैं फिट हूँ। So all the people who are thinking themselves to be fit, they need to pay attention here, क्योंकि ओबेसिटी के दो मार्कर हैं। सबसे पहला मार्कर है BMI, जो हम सब जानते हैं, जब आपका बॉडी वेट आपकी हाइट के अकॉर्डिंग नहीं होता तो आपका बॉडी मास इंडेक्स यानी कि BMI बढ़ा हुआ आता है, 23 से अबव आता है तो आप ओवरवेट कंसीडर किए जाते हैं। दिस एवरीबडी ऑल ऑफ अस नो, राइट, कि आपका बॉडी वेट आपकी हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। उसका एक फॉर्मूला है, आपका वेट इन kg डिवाइडेड बाय योर मीटर हाइट इन मीटर स्क्वायर is your BMI. If BMI is more than 22 or 23, then you are considered to be overweight. Second most important marker which has come up these recent years is your waist circumference. अभी हम देखेंगे कि बहुत सारे थिन फैट इंडियन हैं, उनका वेट ठीक है, स्केल पे उनका वेट उनकी हाइट के हिसाब से ठीक है, पर टमी में फैट निकला हुआ है, उसकी पूरी बॉडी थिन है बट टमी का फैट बढ़ा हुआ है, टमी निकला हुआ है, सो दे आर कॉल्ड थिन फैट इंडियन। सो अगर आपका बेस सर्कमफ्रेंस ज्यादा है तो दैट इज ऑल्सो अ हेल्थ मार्कर, आपको मेटाबॉलिक प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। बैक स्लाइड। सो कौन सी ऐसी चीजें हैं, बैक स्लाइड। सो जो आपका वेस्ट का सर्कमफ्रेंस है उसको हम कैसे जानेंगे कि वो राइट है? तो आपकी हाइट इन इंचेस जो आती है उसको उसके हाफ से ज्यादा आपका वेस्ट का सर्कमफ्रेंस नहीं होना चाहिए। सपोज मेरी हाइट, go back. Yeah. So मेरी हाइट अगर 64 इंचेस है तो मेरा वेस्ट का सर्कमफ्रेंस 32 इंचेस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सो ओवरऑल इन जनरल अगर मेन का वेस्ट सर्कमफ्रेंस 40 से ज्यादा है एंड फीमेल में अगर 35 इंचेस से ज्यादा है तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर डाइट एंड योर लाइफ स्टाइल एंड योर हेल्थ। सो आप लोग कौन सी वेस्ट साइज की जीन्स पहनते हैं वो आज आपको ध्यान करना है। ओके, नेक्स्ट। सो 4 पिलर्स हैं, आपको जब भी आपको अपने वेट से रिलेटेड, अपने हेल्थ से रिलेटेड ट्रीटमेंट चाहिए तो देयर आर 4 थिंग्स व्हिच वी टेक केयर ऑफ। वन इज योर डाइट, प्लेज 80% रोल। सेकंड इज योर फिजिकल एक्टिविटी। थर्ड इज योर स्ट्रेस और योर मेंटल स्टेटस। सो स्ट्रेस इज नॉट बैड, हम उसको कैसे एक्सेप्ट करते हैं या हम उसको किस नजरिए से देखते हैं या हम उसको किस तरह से एम्ब्रेस करते हैं वो आपका एटीट्यूड है, वो आपकी एटीट्यूड है और वो आपको आपकी हेल्थ से रिलेटेड बेनिफिट देती है या नहीं देती है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सो इमोशन इज वन थिंग, स्लीप इज अनदर थिंग, डाइट एंड एक्सरसाइज, देयर आर 4 पिलर्स। नेक्स्ट, अगर हम डाइट की बात करें तो यू ऑल नो कि डाइट इज इंफॉर्मेशन टू बॉडी। जो भी आप खाते हैं, यू आर व्हाट यू ईट, इट इज सेट करेक्टली। तो आज आप जो भी अपना हेल्थ कैरी कर रहे हैं वो आप जो भी खाते हैं उससे वो डिसाइड होता है। सो डाइट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। नाउ बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर हम मोटे हैं तो हमें फैट पे कंट्रोल करना है, हम सब्जियों को बिना ऑयल के बनाना शुरू कर देते हैं, बट डू वी नो दैट शुगर इज अवर रियल बिग एनिमी? हम शुगर को कभी भी नहीं देखते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली अबाउट द विजिबल शुगर विच इज देयर, आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द इनविजिबल शुगर विच इज प्रेजेंट इन अवर डाइट। तो अभी हम देखते हैं। नेक्स्ट, नाउ देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू ऑल। आपको क्या लगता है कि एनी टाइम हमारे ब्लड में कितने ग्राम शुगर मौजूद रहती है? 5 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम या 1 kg? सर, I will say 1 kg. 1 kg? Anybody from behind? 5 grams? Yes. 50 grams? सारे ऑप्शन टिक हो गए? Okay, you will be surprised to know. Yes,
कि हमारे ब्लड में एनी टाइम केवल 5 ग्राम शुगर मौजूद होती है, दैट इज 1 टीस्पून। और जो हम फूड खाते हैं, है ना, अगर हम बात करें एक मैंगो की तो उसमें 44 ग्राम्स ऑफ शुगर होती है। अगर हम बात करें एक एप्पल की तो 20 ग्राम्स, 4 चम्मच नेचुरल शुगर उसमें मौजूद होती है। अगर हम नॉर्मल चपाती को देखें तो 15 ग्राम शुगर उसमें, एक फुलके में जो 20 ग्राम आटे की लोई से बनता है, एक छोटा सा फुलका, उसमें 15 ग्राम शुगर होती है। तो आई एम नॉट स्केयरिंग यू ऑल कि नॉट टू ईट ऑल दिस, लेकिन इसके अलावा जो हम ऐड करते हैं शुगर, बहुत मजे से ऐड करते हैं। तो शुगर, हनी, जैगरी सब बराबर हैं। अभी हम लोग क्या सोचते हैं, हमने शुगर बंद कर दिया, आज से हम गुड़ पे शिफ्ट हो गए। सो गुड़, हनी और शुगर ये सब आपके बॉडी में इक्वल लोड देते हैं। अब व्हाई दिस शुगर इज सो मच सच अ बिग एनिमी ऑफ आवर हेल्थ? क्योंकि शुगर जब भी आप लेते हैं, चाहे वो नेचुरल हो या ऊपर से डाला हुआ हो, जो भी शुगर आपके फूड में प्रेजेंट होता है वो बॉडी में जाके इंसुलिन हार्मोन को ट्रिगर करता है। साइंस के टीचर्स होंगे तो डेफिनेटली दे विल रिलेट टू इट कि वो इंसुलिन हार्मोन को ट्रिगर करता है, और इंसुलिन फैट स्टोरेज हार्मोन है। एंड उसके कारण हमारा बेली फैट निकल रहा है, हम लोग मोटे हो रहे हैं, फूलते जा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने विजिबल फैट को कंट्रोल करना है। मैदा, ब्रेड, शुगर, राइस, ये सब में भी विजिबल, नॉन विजिबल फैट होता है जो जल्दी शुगर में कन्वर्ट होता है। तो सबसे पहले हमें इसे कंट्रोल करना है। उसके बाद जो इनविजिबल फैट दूसरी चीज़ों में है, अगर आप एक्सेसिव चपाती ले रहे हैं तो उसे आपको कंट्रोल करना है। आई विल बी टेकिंग क्वेश्चंस। यस, repeat what you said just now. मैदा, राइस, ब्रेड एंड शुगर, पास्ता, जितने भी ये मैदे से बनी हुई चीज़ें हैं, ये जल्दी शुगर रिलीज करते हैं, जल्दी शुगर में कन्वर्ट होते हैं। तो ये हमारे ब्लड शुगर को जल्दी स्पाइक करते हैं। मोर इंसुलिन इज रिक्वायर्ड, मोर फैट स्टोरेज मोड में आप स्विच हो जाते हैं। इसके अलावा हम लेडीज़ की क्या आदत होती है, व्हेन वी आर अराउंड किचन वी कंटिन्यूसली मंच समथिंग। हम थोड़ी थोड़ी चीज़ों को कंटिन्यूस मुंह में रखते रहते हैं। तो जितनी बार आप मुंह में रखते हो उतनी बार इंसुलिन ट्रिगर होता है, उतनी बार आपका बॉडी फैट स्टोरेज मोड पे स्विच हो जाती है। तो आपको क्या रखना है, गैप रखना है खाने के बीच में। नेक्स्ट स्लाइड। सो ये आपकी आई ओपनर है। आप देख सकते हैं कि हमारा जो नेचुरल फूड, सो कॉल्ड गुड फूड, जो हम बाजार से लेकर आते हैं, सुपरमार्केट से खरीद के लेकर आते हैं, मेयोनीज, सॉस, जेली, जैम, उनमें कितनी शुगर प्रेजेंट होती है हम यहाँ पे देख सकते हैं। इवन चिप्स में भी हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप मौजूद होता है, जो अगेन शुगर का ही एक पार्ट है। सो ऑल दिस पैकेज थिंग या जितनी भी डब्बे वाली चीज़ें होती हैं, हमें अपने घर में स्टोर नहीं करनी है। आपको बिस्किट्स अपने घर में नहीं रखने हैं, क्योंकि बिस्किट्स चाहे कितना भी हेल्थ क्लेम करें, आपको कितने भी वो आप पतंजलि के ला रहे हैं, आप डाइजेस्टिव ला रहे हैं, आप बहुत न्यूट्री चॉइस ला रहे हैं, आप चाहे जितने भी हेल्दी बिस्किट्स खा रहे हैं, वो सब आपको नुकसान करते हैं, बिकॉज उसके अंदर शुगर की मात्रा मौजूद होती है। नेक्स्ट। सो चाय की बात करते हैं। सो टीचर्स लव टी, और वो बोलते हैं कि भाई टी मत हटाना हमारी डाइट में से, दिस इज रियली नीडेड। स्टिमुलेंट होती है, हमें फ्रेश उसी से लगता है, हम काम उसी से कर पाते हैं, लेट नाइट जग उसी से पाते हैं। सर आप कितने कप चाय पीते हैं दिन भर में? 3 कप। सर थोड़ा सा लिमिट क्रॉस हो रहा है। सी, हमारी बॉडी इतनी टॉलरेट नहीं कर सकती। जब हम यंग हैं हमारी बॉडी टॉलरेट करेगी, आपको सपोर्ट करेगी, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी आपकी बॉडी टॉलरेट नहीं करेगी। सो सर कप विदाउट शुगर, विथ शुगर, विदाउट शुगर, दैट इज ओके। मुझे मैम बता ही रहे थे कि सर इज रियल एग्जाम्पल ऑफ फिटनेस। वो बहुत डिसिप्लिन रहते हैं और वो काफ़ी कंट्रोल करते हैं, क्योंकि आज सर जहाँ मेस में बैठे हुए थे, पीछे समोसे की फोटो लगी हुई थी, एंड आई वाज जस्ट टॉकिंग टू हर कि एक सेशन मैंने INH में लिया था, उस समय मैंने सर से पूछा था कि समोसे में कितना ऑयल होता है। आई वाज जस्ट टेलिंग हर कि आज सर समोसे के ही जस्ट आगे बैठे हुए हैं, तो दैट थिंग इज रिमाइंडिंग मी ऑफ दैट इंसिडेंस। तो सर ये तो है कि अगर हमारा डाइट सही होता है तो हमारी जो एनर्जी लेवल होता है वो कुछ और ही होता है। और आज अगर आप सब अपने डाइट में कुछ हेल्दी बदलाव कर पाए तो आपकी एफिशिएंसी लेवल दुगनी हो सकती है। ये बात एकदम फिक्स एंड फाइनल है। सो चाय की बात कर रहे थे। सो चाय में 1 चम्मच शक्कर डलती है। अगर आप, जैसे मैम बोल रही थी कि NH गोयल में आने के बाद से 5 kg वेट मेरा बढ़ गया है, तो अभी हमें ये देखना है कि हमने क्या एक्स्ट्रा शुरू किया है। सपोज आप 1 कप चाय एक्स्ट्रा शुरू कर लेते हैं। सपोज आप यहाँ पे आए हैं और आप 1 कप चाय एक्स्ट्रा लेना शुरू कर देते हैं,
तो 1 कप चाय में 1 चम्मच शक्कर डलेगी, 5 ग्राम, उसमें 20 ग्राम आपको 20 कैलोरीज आपको मिलेगी। 20 कैलोरीज अगर आप 365 दिन लेते रहते हैं तो 7000 कैलोरी एक्स्ट्रा, और 7000 कैलोरी इक्वल टू 1 kg ऑफ फैट। दिस इज अ सिंपल कैलकुलेशन। सो दिस इज हाउ यू स्टार्ट गेनिंग वेट। आपको लगता है कि मैंने तो कुछ भी बदलाव नहीं किया, एंड यू डोंट पे अटेंशन टू लिटिल थिंग्स, एंड दैट इज हाउ वी अंडर एस्टिमेट वॉट वी आर टेकिंग। So you should not be underestimating what you are taking. So every cup of tea is containing enough amount of sugar to make you fat. So what shall we do? Instead of sugar, instead of tea, हमें अपने मील में ज़्यादा से ज़्यादा पानी इंक्लूड करना है। हम लोग पानी बहुत कम पी रहे होते हैं, पानी इंक्लूड करना है, होलसम ग्रेन, होलसम अनाज, ये सब चीज़ों को हमें इंक्लूड करना है। नेक्स्ट, सो कुछ और मिथ्स की बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ब्राउन ब्रेड्स और हेल्दी बिस्किट्स आर नॉट हेल्दी। ओके, सो ब्रेड का आप जितना कम इस्तेमाल करेंगे उतना ही आप अपने घर वालों को और खुद को फिट रख सकेंगे। नेक्स्ट मिथ है कि हनी और जैगरी आर सेफर देन शुगर। दिस इज कंप्लीट मिथ। इनमें ये थोड़ा अनप्रोसेस्ड होते हैं, इसलिए थोड़े से बेनिफिट हैं, इनमें मिनरल्स होते हैं, लेकिन शुगर लोड उतना ही होता है, कैलोरीज उतनी ही प्रोवाइड करते हैं। ब्रेकफास्ट सीरियल्स जो अक्सर हम लोग यूज़ करते हैं जैसे चोकोज, कॉर्नफ्लेक्स, दे आर गुड फॉर वेट लॉस। हु सेज इट? तो ये भी आपको कार्ब लोड देते हैं, वेट गेन कराते हैं, आपको कुछ हेल्प नहीं करते हैं। नेक्स्ट है कि लो फैट क्लेम जो रहता है, आप बाजार में सुपरमार्केट में जाते हैं, वहाँ पे लो फैट क्लेम रहते हैं, तो आप उसमें भी ध्यान से देखिए, क्योंकि बहुत बार उसमें एडेड शुगर रहती है, और कई बार लो फैट आपको इतना हार्म नहीं करता जितना कि शुगर कर देता है। नेक्स्ट, सो कॉमन गाइडलाइन क्या है? अगर हम डाइट की बात करें तो कॉमन गाइडलाइन ये है कि यू हैव टू रिड्यूस योर कार्बोहाइड्रेट इनटेक, यू हैव टू इंक्रीज योर प्रोटीन इनटेक, गुड फैट्स, क्वालिटी फैट्स। क्वालिटी फैट्स आपको मिलते हैं नट्स में, सीड्स में, जितने भी तरह के नट्स होते हैं, काजू, बादाम, पिस्ते, पीनट, और जितने भी तरह के सीड्स होते हैं उसमें गुड हेल्दी फैट्स होते हैं, उनको आपको इंक्लूड करना चाहिए अपने डाइट में। सिंपल कार्बोहाइड्रेट से बिल्कुल दूरी बनानी चाहिए। सिंपल कार्बोहाइड्रेट जैसा कि मैंने बताया था कि मैदा, ब्रेड, शुगर। नेक्स्ट है कि नो फ्रीक्वेंट मंचिंग। हम लोग जो कंटिन्यूस मंच करते रहते हैं वो मंचिंग नहीं करनी है, बंद करनी है। नेक्स्ट इज फास्टिंग। फास्टिंग इज वेरी वेरी गुड अगर साइंटिफिक तरीके से की जाए, नॉट लाइक कि हमने दिन भर फास्ट किया उसके बाद हेवी मील से हमने फास्ट को ब्रेक किया। अगर साइंटिफिक तरीके से फास्टिंग की जाए, इट इज़ वेरी वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, फॉर योर एनर्जी लेवल, फॉर एवरीथिंग। नेक्स्ट है गुड फैट्स, मैंने बता दिया। स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑन 5 C's, केक्स, कोलास, कुकीज एंड कॉफी एंड कैंडी। ये 5 C आपकी डाइट में नहीं होने चाहिए। एंड 5 S को आपको इंक्लूड करना है। 5 S, नॉट S फॉर शिल्पी, S फॉर सैलेड, S फॉर स्मूदी। स्मूदी से मेरा मतलब है आपको वेजिटेबल स्मूदी अपने मील में डालनी है। सैलेड्स आप में से कितने लोग खाते हैं अपने मील के साथ? ठीक है, जिनके हाथ नीचे हैं दे शुड ट्राई टू इंक्लूड सैलेड इन देयर डाइट। सैलेड्स आर वेरी गुड फॉर्म ऑफ फाइबर, और वही एक ऐसी नेचुरल चीज़ है जो नेचुरल फॉर्म में खाते हैं, बाकी तो सबको कुक कर करके उसके न्यूट्रिशन को खत्म कर देते हैं। तो सैलेड्स को जरूर खाना है। देन कम्स स्मूदी। स्मूदी मीन्स वेजिटेबल की स्मूदी। वेजिटेबल स्मूदी में सबसे अच्छी स्मूदी होती है ग्रीन स्मूदी। आप सब मेरे चैनल में जाके ग्रीन स्मूदी का रेसिपी देख सकते हैं। दैट इज मेड अप ऑफ पालक, आंवला, आप देख सकते हैं उसको। देन आपकी सीड्स मैंने आपको बताए। स्प्राउट्स आपके डाइट में ज़रूर होना चाहिए। एंड सोक्ड नट्स। तो दिस 5 C's, 5 S आपको अपने मील में शामिल करने हैं। नेक्स्ट, वाटर हम में से बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं। जो भी 1 कप चाय हम पीते हैं वो आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट करता है, आपकी बॉडी में से पानी को फ्लश आउट करता है। सो आपको एक्स्ट्रा 2 कप्स पानी उसके साथ पीना चाहिए। सो पानी का इंटेक आपके बॉडी के वेट के हिसाब से डिसाइड होता है। आपके बॉडी वेट इंटू 5 करेंगे तो वो आपका पानी का इंटेक आता है। जैसे अगर मेरा बॉडी वेट 50 है तो मेरे पानी की रिक्वायरमेंट 2.5 लीटर है। सो दिस वे यू कैलकुलेट योर वाटर इंटेक एंड देन अकॉर्डिंगली यू ड्रिंक योर वाटर। Ma'am, excuse me, body weight into 5। यस। तो क्या होता है कि अगर आप अपना यूरिन का कलर चेक करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना कम आप पानी पी रहे हैं। अगर यूरिन का कलर डार्क है, यू आर ड्रिंकिंग वेरी लेस वाटर। और बहुत सारे हेल्थ ट्रबल्स पानी का इंटेक बढ़ाते ही खत्म हो जाते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है,
वो केवल पानी के इंटेक को बढ़ाते ही वो खत्म हो जाते हैं। सो पानी का इंटेक बहुत ज़रूरी है। हमारा शरीर कुछ 5 तत्वों से बना है सर, उसमें फूड, वाटर, वायु सब आता है, तो वाटर इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। आपका 80% बॉडी का जो है वो वाटर है, और उसको हाइड्रेट रखने के लिए आपको उतना ही पानी वापस पीना चाहिए। So there is a game time for teachers. So these are 4 items which you have to arrange in descending order of calories. आपको जो लगता है सबसे हाईएस्ट कैलोरी है उसको सबसे पहले रखिए, उसके बाद उसके बाद उसके बाद। Very simple it looks, right? So who will attempt it? Yes, ma'am. That's your call. Okay. ये sprouts है. Yes, sir. Sprouts. Salad. Sprout salad. Yes. Descending order. Descending order. Highest first. Okay. Salad. Okay, ma'am, you. Okay. So NH Goyal has got very smart and very talented teachers. जैसा कि मैम ने पूछा कि मुझे क्वांटिटी देखनी है कि नहीं देखनी है. So this was the first time when somebody from the audience asked me कि क्वांटिटी देखनी है कि नहीं. Yes ma'am, you were right. क्योंकि these all item contain same calories, that is 500 calories. The catch is their quantity. आपको जो क्वांटिटी दिख रही है, केक का जो पोर्शन दिख रहा है, 8 पीस, वो इक्वल टू 4 चपातीस, है ना? तो आपको क्या करना है? केक से पेट भरना है कि चपाती से पेट भरना है? अगर आपने केक से पेट भर लिया तो आप 4 गुना ज्यादा खा लेंगे, एंड 5 एप्पल को हम फिनिश भी नहीं कर पाते हैं, राइट? सो देयर इज कॉन्सेप्ट कॉल्ड कैलोरी डेंसिटी। हर एक चीज कैलोरी में या तो डेंस होती है, तो जितने भी वेजिटेबल्स होते हैं वो कैलोरी में बहुत लाइट होते हैं, उनका पर ग्राम उसमें पानी का क्वांटिटी बहुत होने के कारण वो बहुत लाइट होते हैं। तो आपको 100 ग्राम वेजिस 40 कैलोरी देंगे, लेकिन 20 ग्राम की चपाती 100 कैलोरी देगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर आपने सैलेड या वेजीज ऐड नहीं की अपने मील में, तो आप क्या कर लेने वाले हैं? अपने मील को मिसमैनेज कर लेने वाले हैं, मील हेवी हो जाएगा और फिर आप लोग सेम क्वांटिटी में ही मोटे होते जाएंगे। तो आपको अपने मील का एक मेजर पार्ट वेजिटेबल से लेना है। वेजिटेबल को जनरली अपन अगर बिजनेस की भाषा में बात करें तो चपाती को हम लोग 100 रुपए का नोट बोलते हैं, वेजिटेबल को हम लोग 20 रुपए का नोट बोलते हैं और फ्रूट्स को हम लोग 40 रुपए का नोट बोलते हैं। और जितने भी आपके एकदम पेस्ट्री और रसगुल्ला जैसे अभी था मेस में, गुलाब जामुन, उसको हम लोग 1000 रुपए का नोट बोलते हैं। उसको उतना ही खाना है क्योंकि वो बहुत ज्यादा कैलोरीज आपको दे देगा। तो सर मेनू कैसा सेट करना है? 40 रुपए के नोट वाला या 1000 रुपए के नोट वाला? 40 रुपए। ओके ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड। सो व्हाट सिलेक्शन ऑफ फूड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जितने भी लोग ऐसा पूछेंगे यार आपकी फिटनेस का क्या राज है, बोलेंगे हमारे प्लेट में ज्यादा पोर्शन सैलेड और फ्रूट वेजीज का होता है। ओके, दिस इज अ सिंपल बेसिक सीक्रेट व्हिच आई वांट टू शेयर विद यू, नथिंग एल्स। So selection of food is very very important. So take good thing in larger quantity and bad thing in smaller quantity. And how much? अच्छा, इसके बाद एक क्वेश्चन है कि how long will you take to burn this 500 calories? जो आपने देखा ना 1 piece of pastry, उसको burn करने के लिए आपको कितनी एक्सरसाइज की जरूरत पड़ेगी? Anybody? Any guesses? Guesses? Just guess. 30 minutes of walk. Yes. आप करते हैं? 1 पीस गुलाब जामुन, 2 पीस गुलाब जामुन खा के हमने 30 मिनट्स ऑफ वॉक किया आज। उसको बर्न करने के लिए कितना टाइम लगेगा? यस, 2 आवर्स ऑफ वॉकिंग। एक पेस्ट्री को खा के 2 आवर्स ऑफ वॉकिंग हम करते हैं? नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमें कितना टाइम लगेगा उसको बर्न करने के लिए। यस, नेक्स्ट स्लाइड। 90 मिनट्स ऑफ वॉक एंड 45 मिनट ऑफ जॉगिंग। ओके, तो कभी भी आप देखिए कि जब भी आप एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो आप क्या कंप्लेन करते हैं? इतनी एक्सरसाइज कर रही हूँ, 45 मिनट 30 मिनट जॉगिंग कर रही हूँ, फिर भी वेट कम नहीं हो रहा, क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा एक गुलाब जामुन के आपने तो खाली उसी को खर्च किया आपने।
अभी तो खाली उसी को बर्न किया, बाकी का दिन भर का क्या हुआ? तो हम करते हैं और उसके पीछे हमने एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा रखी हुई है, जबकि हमें पता नहीं है कि कैलोरीज को खर्च करने के लिए बहुत एक्सरसाइज और बहुत सारी एक्टिविटी करनी पड़ती है। इसलिए सिलेक्शन ऑफ कैलोरी शुड बी राइट। इसलिए कहा जाता है कि डाइट का 80% रोल है। तो जब भी किसी को फिटनेस बढ़ानी है तो एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं, लेकिन डाइट जब तक सही नहीं होगी तब तक आपको रिजल्ट्स प्रॉपर नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट, सो हम एक्सरसाइज पे आते हैं। डाइट पे हमने बात की, नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज में 3 कैटेगरी होती है लोगों की। एक वो जो दिन भर एक्टिव रहते हैं तो वो बोलते हैं हमें एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। एक वो जो एक्सरसाइज करते हैं फिर दिन भर बोलते हैं हमें कुछ भी हिलने डुलने की जरूरत नहीं है। तीसरे वो जो एक्सरसाइज भी करते हैं और एक्टिव भी रहते हैं, लाइक सर। तो फिर दे लुक फिट। तो हमें थर्ड कैटेगरी में फॉल करना है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, बहुत अवॉइड करते हैं। हमारे को उधर जाना है तो कोई ला दे, फोन कर ले, कोई गिर गया तो कोई और उठा के दे दे, उसके बाद हम कंप्लेन करते हैं कि हमारी टमी निकलती जा रही है। तो हमें फिजिकली मूवमेंट रखनी है, इट्स मैंडेटरी। ये 4 पिलर्स हैं, 4 पहिए हैं वेलनेस के। एक भी नहीं रहेगा तो दूसरा काम नहीं करेगा प्रॉपर्ली। सो मूवमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्सरसाइज शुड बी मैंडेटरी। जैसे ब्रश करते हैं, नहाते हैं, एग्जाम में तब भी एक्सरसाइज जरूरी है। ये चीज आपको बच्चों को बतानी है। एग्जाम है, मूवमेंट छोड़ दी, वैसा नहीं करना है। एग्जाम है तो और अच्छा ब्लड सर्कुलेशन होगा, और अच्छी एनर्जी वो फील करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज से कुछ नहीं होता, हमारी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाती है। जैसे छोटी सी बात है, जैसे मैं और मैम अभी चढ़ के ऊपर आए सीढ़ी से, तो मैम की सांस भर गई, तो ये आपका हेल्थ का मार्कर है। दिस इज नॉट गुड। अगर आप सीढ़ी चढ़ते हैं आपको सांस चढ़ जाती है तो दिस इज नॉट गुड। अगर आप फिट हैं तो आपकी सांस फूलेगी नहीं या जल्दी नॉर्मल पे आप आ जाएंगे। तो आपको फिजिकल मूवमेंट अपनी रखनी है, अपने शरीर को इतना लेथार्जिक नहीं बनाना है, वरना दुबले पतले लोगों को एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। हम सभी को जरूरत है, एवरीबडी नीड्स इट एंड डू नॉट मिस इट। कोई भी दिन हमें मिस नहीं करना चाहिए। सो एक्सरसाइज में देयर आर 5 डिफरेंट फॉर्म्स। स्किल, जिसमें हम सभी फॉर्म को इंक्लूड करते हैं, जिसमें स्पोर्ट्स आता है उसमें सभी फॉर्म इंक्लूडेड रहते हैं। देन आता है स्टेमिना। स्टेमिना यानी कि जब हम दौड़ लगाते हैं, चढ़ते हैं, तब स्टेमिना। स्पीड, जब हम रनिंग करते हैं तो स्पीड हमारी इंप्रूव होती है। देन स्ट्रेचेबिलिटी, जब हम योगा करते हैं या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, योगा करते हैं तो स्ट्रेचेबिलिटी। देन स्ट्रेंथ, जब हम वेट ट्रेनिंग करते हैं तो स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है। तो दीज आर 5 S, अलग अलग फॉर्म इंप्रूव करता है। एक्सरसाइज कोई भी अच्छी है, जो आप करते हैं वही फॉर्म अच्छा है। नेक्स्ट कम स्लीप। अभी हमारे टीचर्स में से किसी ने बोला कि स्लीप इज वन इशू विद टीचर्स, कि नींद ठीक से नहीं आती। तो क्यों नहीं आती नींद ठीक से? एनी गेसेस? सर क्यों नहीं आती होगी नींद ठीक से? इसी में एक शायरी याद आ गई, सुना है इश्क करने वालों की नींद उड़ जाती है, कोई हमसे भी करे इश्क हमें नींद बहुत आती है। तो क्यों उड़ी हुई है नींद? आई एम सो सॉरी, ये जस्ट स्पॉन्टेनियस माइंड में आ गया। तो क्यों नींद उड़ जाती है, क्यों नींद नहीं आती है? एनी गेसेस? किसी की कुछ, कोई कहना चाहता है कुछ इस बारे में, नींद क्यों नहीं आती है? मैम आज के टाइम में सबसे बड़ा रीजन है मोबाइल फोन। हाँ करेक्ट। रात को मोबाइल फोन, स्मार्टफोन चालू हो गया, टक 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 चालू है। You know what happens during when you see gadgets और मोबाइल और कंप्यूटर और टीवी during night? क्या होता है कि उससे जो लाइट निकलती है उससे आपका एक मेलाटोनिन हार्मोन होता है बॉडी में, जो नेचुरली सीक्रेट होता है 6 बजे के बाद से। ये स्लीप हार्मोन होता है। वो हार्मोन डिस्टर्ब हो जाता है जब आपकी आर्टिफिशियल लाइट बहुत ज्यादा आंखों में पड़ती है, वो हार्मोन डिमिनिश होने लगता है और तब आपको नींद नहीं आती है। तो आपको क्या करना है? गैजेट से दूरी बनानी है। सर हंस रहे हैं, बोल रहे ये तो इम्पॉसिबल है। तो गैजेट से दूरी केवल सोने के 1 घंटे पहले बना ले, उतना भी बहुत बड़ा काम है। अगर सोने से 1 घंटा पहले आपने फोन और अपने मोबाइल और अपने टीवी कंप्यूटर को साइड रख दिया तो आपकी नींद की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। सेकंड क्या होता है रीजन? सॉरी, यस डाइट हो सकता है, डेफिनेटली डाइट हो सकता है। आपने बहुत हेवी खा लिया है, अभी बॉडी डाइजेशन में लगी हुई है, तो आपको सुलाएगी कैसे? एनर्जी डाउन नहीं होगी, आप सोएंगे नहीं। और क्या हो सकता है? लेट डिनर। सर लेट डिनर, यस लेट डिनर इज बिग फॉल्ट। सो देयर इज वन मेन रीजन व्हिच आई फील इज, जैसे आप कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं, उसमें कुछ कोई फाइल खुली रहती है, तो कंप्यूटर शट डाउन होता है क्या?
नहीं होता, वो बोलता है पहले वो फाइल को क्लोज करिए। अभी हम लोग दिन भर बहुत सारे काम करते रहते हैं, पर रात को हम लोग उसको साइलेंट नहीं करते, मतलब सारी जो दिमाग में फाइल खुली हुई है उसको क्लोज नहीं करते। उस चलते हुए कंप्यूटर को हम बोलते हैं सो जा सो जा सो जा, कैसे सोएगा? तो रात को 10 मिनट बैठ के सारी चीजों को क्लोज डाउन करके अपने माइंड को रिलैक्स करके अगर आप सोएंगे तो दैट इज कॉल्ड माइंड मैनेजमेंट टेक्निक। तो उससे बहुत अच्छी नींद आएगी। और सुबह उठकर किसको किसको चाय की जरूरत पड़ती है अपने आप को जगाने के लिए? Oh my God, little girl, अभी से किसको किसको चाय की जरूरत पड़ती है? जगाने के लिए, अपने आप को एनर्जी लाने के लिए, एक्टिव करने के लिए। पूरा हाथ उठाइए जोर से। ये सारे डिप्रेस लोग हैं सर, ये सारे डिप्रेस लोग हैं। क्या कर रहा है? तो क्या है कि आपको चाय की जरूरत नहीं होनी चाहिए अपने आप को जगाने के लिए। आपका एक मोटिवेशन, आपका एक गोल, आपका एक एनर्जी का पॉइंट काफी होना चाहिए आपको एनर्जी देने के लिए। क्या वो चाय के कप में एनर्जी भरी पड़ी है? नो, इट्स आर्टिफिशियल एनर्जी। उसमें कैफीन है जो आपके ब्लड प्रेशर को रेस कर देता है टेम्पररी, और आपको लगता है मेरे में एनर्जी आ गई, लेकिन वही ग्राफ फिर डाउन हो जाता है, फिर आप चिड़चिड़ करते हैं। तो हमें अंदर की एनर्जी जागृत करनी है, हमें चाय से एनर्जी नहीं लेनी है। तो अक्सर मैं अपने क्लाइंट्स को बोलती हूँ, जो बोलते हैं मैम मुझे चाय देंगे तभी मैं डाइट लूंगा। मैंने कहा हाँ, आपका नाम लिख देते हैं टी पॉजिटिव। तो मेरे कुछ क्लाइंट उनका नाम के सामने लिखा है टी पॉजिटिव, उनको चाय देनी रहती है। तो धीरे धीरे वो लोग बाहर आ रहे हैं, अब अंदर की एनर्जी को जगा रहे हैं, तो धीरे धीरे फिर वो बाहर आ जाएंगे। इमोशन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सर जानते हैं कि हमारी बॉडी में एनर्जी के कुछ पॉइंट्स है जिसको चक्रास बोलते हैं। हमारी बॉडी में एनर्जी के पॉइंट्स हैं, उसको चक्रास बोलते हैं। तो जब भी आप रॉन्ग थॉट को वेटेज देते हैं, नेगेटिव थॉट को वेटेज देते हैं, यार मेरे साथ ये तो होने वाला है गड़बड़, या कुछ भी एनी रॉन्ग इमोशन को वेटेज देते हैं, तो एनर्जी ब्लॉकेज होती है और वहीं से बीमारियां शुरू होती हैं। अभी बहुत सारी जो बीमारियां हैं उनका जो रूट कॉज है उसको साइकोसोमैटिक इलनेस भी बोलते हैं, जिसमें अर्थराइटिस, बैक पेन, घुटने में पेन, डायबिटीज, थायराइड, ये सब में इमोशंस जुड़े हुए हैं। अभी मैं आप लोगों के फॉर्म देख रही थी, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बीमारी छूटी होगी सर। पीसीओएस, डायबिटीज, बीपी, एसिडिटी, गैस, मैंने सबके पॉइंट्स बना लिए। मैं सब में एक यूट्यूब वीडियो बनाऊंगी। मुझे लगा कि एक टॉक में इतने सारी बीमारियों के बारे में तो बात करना बहुत मुश्किल होगा, सो आई मेक वीडियोस एंड यू ऑल कैन वॉच देयर। मेरे छोटे छोटे इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं यूट्यूब पे, एक एक टॉपिक के ऊपर, एसिडिटी के ऊपर, और जो जो आप लोगों ने लिखे हैं उसमें। So these all problems start from your emotion. जहाँ पे इमोशन डिस्टर्ब होता है वहीं से प्रॉब्लम्स चालू हो जाती हैं। सो इमोशन को प्योर रखना, पॉजिटिविटी के साथ रहना बहुत जरूरी है। कई बार हमारी संगति ऐसी होती है कि वहां से हमें नेगेटिविटी मिलती है। कई बार न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल या कोई लोग, हमारे संग सहेलियां हमें नेगेटिव चीजें हमें बोलते हैं और वो चीजों से हम डिस्टर्ब रहते हैं, या फिर हमारे अंदर से ही कई बार हम नेगेटिविटी की तरफ रहते हैं। तो उसको पॉजिटिव करना है, उसके लिए मेडिटेशन करना है, प्राणायाम करना है, ब्रीदिंग टेक्निक्स करनी है, सुबह उठना है, गुड एयर लेना है, ऑक्सीजन लेनी है खूब सारी। ओके, नेक्स्ट। सो द समरी ऑफ द टोटल स्टोरी इज कि गुड हेल्थ का कोई शॉर्टकट नहीं है। अभी हमने कोरोना टाइम पे देखा ही कि एक दिन में इम्यूनिटी बिल्ड नहीं हो सकती, isn't it? तो ये पिछला किया हुआ कर्म है जो आपको आज आपकी गुड हेल्थ देता है। सो आज से अगर करना शुरू करेंगे, कंट्रीब्यूट करना शुरू करेंगे, तो डेफिनेटली आप अपने हेल्थ को प्रिजर्व कर पाएंगे, आप मेडिसिन फ्री रह पाएंगे, एंड किसी भी चीज को रूट कॉज से ठीक करने की कोशिश करिए। खाली ऊपर से सिम्टम्स को क्योर नहीं करना है। हेडेक हो रहा है, पेन किलर खा लिया, बिल्कुल नहीं करना है। उसके रूट पे जाके वहां से उसको ट्रीटमेंट देना शुरू करना है। एंड टीचर्स के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वो पूरे नेशन को बिल्ड कर रहे हैं, बच्चों को कर रहे हैं, तो योर हेल्थ शुड बी एट योर एंड। दैट इज ऑल आई वांट टू से। तो यहाँ से जो शुरू होगा, एक रियलाइजेशन शुरू होगा, उसके बाद उसमें वर्किंग शुरू होगी और फिर रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो मैं आपको आंसर करूँगी। थैंक यू। Okay, can I ask? Yes, sir. So what should be the composition of a good breakfast? ओके, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। आपका ब्रेकफास्ट या कोई भी मील, ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, उसकी कॉम्पोजिशन ऐसी होनी चाहिए
कि उसमें एक गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन ज़रूर होना चाहिए. सो ब्रेकफास्ट में इट कैन बी एग, और जो वेजिटेरियन है उनके लिए मिल्क, और मे बी पनीर, जो लोग को वेट लॉस करना है छेना ले सकते हैं, कर्ड, और मे बी जो लोग विगन हैं उनके लिए स्प्राउट्स, जिनको मिल्क भी सूट नहीं करता, छेना भी सूट नहीं करता, उनके लिए स्प्राउट्स. एंड अलॉन्ग विथ इट some veggies should be there. It can be along with your breakfast, and apart from it, one fruit. So this makes a complete breakfast. So there is 5 food group which I always talk about: anaj, dal, milk, and egg and dairy, whatever, fruits and vegetable, and nuts and seeds. So this makes high five and a punch, just to keep disease away. So this should be composition of your breakfast. So cornflakes usually are not good things. So muesli can be okay, but again there is a lot of added dry fruits to it that can increase your calorie overall. Mueslis are good because that is made with oats and some other brands. But cornflakes has very high glycemic index. It converts to sugar very fast. So that's a kind of a load to your body. Oats is a very good breakfast. And mueslis are basically composed of oats. 30 to 40% oats, then other flakes. Yes, ma'am. It's a controversy. In some articles we read that fruits should be eaten immediately after the meal. Yes. And in some articles it said that fruit should not be taken just after the meal. Yes, after the meal, I will not recommend to you have fruits. But some people have sweet craving, so I tell them that instead of having go and having some sweet, you have some fruit. So fruit is additional load. It can be eaten as a snack in between. Like evening में आप fruits खा सकते हैं, morning के breakfast के साथ आप fruits ले सकते हैं. So always before beginning your meal, it should be raw and good things to start with. It's not after your meal. It will be load extra. So, excuse me, Yes, shouldn't ma'am. we take fruit at night? Yes, you can take fruits at night. No problem in that. It should not be refrigerated fruits because altered temperature is the problem, not fruits as such. मीन्स केला आपको सर्दी नहीं करेगा, लेकिन कोई चीज फ्रीज की है और वो आपने खिलाई है, वो आपको सर्दी कर सकती है. सो ऑल्टर्ड टेम्परेचर इज द प्रॉब्लम, नॉट फ्रूट्स. एनी फ्रूट, किसी भी फ्रूट में कुछ हार्मफुल ऐसी चीज नहीं है कि आपको सर्दी कर देगी या कोई प्रॉब्लम कर देगा. सो कैन टेक एनी टाइम ऑफ द डे, इट्स ओके. यस सर. मीठी चाय अगर लेनी है तो एक दिन में कितनी? सर खून चाहे 1 करिए चाहे 10 करिए. फिर भी माफी कितने की मिलेगी? माफी सी WHO की जो रिकमेंडेशन है वो मुझे बतानी नहीं है, तो आप लोग बहुत ले लेते हैं. वो एक्चुअली 2 टीस्पून, अगर कोई फिट इंडिविजुअल है तो 2 टीस्पून शुगर तक तो अलाउड है. उसके ऊपर जो भी लेते हैं ना वो बहुत एडिशनल है, वो फिर आपको बहुत हार्म करती है. सो अगर आप 2 टीस्पून एक चाय नहीं ले लेते हैं तो बस फिर दिन भर आपको मुंह को सील के रहना है. शुगर फ्री इज इवन हार्मफुल मैम. क्या होता है कि शुगर फ्री के क्लियरेंस के ना किडनी पे लोड आता है. सो शुगर फ्री इज इवन मोर हार्मफुल देन नॉर्मल शुगर. No, if we don't take those tablets also and just having without that, then Without sugar at all? Yes. Yes. So without sugar, as sir was saying, is no free. sugar free tablets. No sugar, no sugar free, no stevia, nothing. If you are taking tea like that, तो उसमें कोई चीज जाएगी. एक तो कैफीन. कैफीन क्या करता है, आप चाय के साथ नट्स खाते हो, बादाम खाते हो या कुछ अच्छी चीज खाते हो तो इसको बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होने देता. कैफीन क्या करता है, आयरन के एब्जॉर्प्शन को रोक देता है. और इसीलिए चाय के जितने भी साथी हैं, चाय का साथी कौन है, रस्क है, बिस्किट है, तो चाय के साथी पूरे खाओ, क्योंकि अच्छी चीज खाओगे तो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगी. बिकॉज कैफीन जो होता है वो आयरन के एब्जॉर्प्शन को रोक देता है. सो दैट इज वन थिंग. सेकेंड इज द एडिशनल जो मिल्क आप ले रहे हैं, दैट यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट. अदरवाइज बिना शुगर की चाय फिर भी बेटर है देन टेकिंग अ शुगर विद शुगर टी. What about myth about green tea? यस, ग्रीन टी इज गुड, बट ग्रीन टी में 2 वैरायटी आती है. एक आती है कैफिनेटेड और एक आती है कैफीन फ्री. यू शुड read the label and get caffeine free one, not caffeine free green tea, not caffeinated green tea. ऑयली फूड, यस, मैंने कुछ नहीं बताया ऑयली फूड के बारे में, क्योंकि मेरा मेन मकसद था कि आपको शुगर के लिए अवेयर करना. बिकॉज ऑयली फूड ऑल ऑफ अस नो कि ऑयली फूड हमें नहीं खाना है, बिकॉज जो डीप फ्राइंग होती है दैट्स अ सबसे वर्स्ट प्रोसीजर है कुकिंग का.
हमें डीप फ्राइड चीज़ें अवॉइड करनी है अगर आपको अपना हेल्थ सही रखना है, लेकिन फैट एज सच बुरे नहीं होते। एडिंग फैट इज़ नॉट बैड। तो आपको फैट, गुड क्वालिटी के फैट्स आपको इस्तेमाल करने हैं, जैसे फ्लैक्सीड्स में होते हैं, जैसे कोकोनट में होता है, पीनट में होता है। तो अभी हमने कुछ ऐसी सब्जियां बनाई, सात्विक सब्जी हम उसका नाम देते हैं। सो उस सब्जी में हमने ऑयल नहीं डाला, लेकिन कोकोनट की ग्रेवी डाली, कोकोनट को ग्रेट करके उसमें डाला, सो दैट अ गुड फैट कम्स इनटू द वेजिटेबल। सो दैट्स ओके। सो नॉर्मली 4 टीस्पून ऑयल दिन भर में अगर आप लेते हैं, दैट्स ओके। लेकिन जब आप एक समोसा खाते हैं तो उसमें 4 चम्मच एक साथ चला जाता है। दैट इज व्हाई इट इज बैड। Ma'am, you mentioned about scientific way of fasting. Yes, so it's called intermittent fasting, जिसमें आप कुछ विंडो, कई तरह के इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है, जिसमें एक तरीका होता है ईट स्टॉप, यानी एक दिन आप खाते हैं, एक दिन पूरा दिन फास्ट करते हैं। दूसरा तरीका होता है कि आप 16 घंटे फास्ट करते हो, 8 घंटे खाते हो। तो टू स्टार्ट विद जो बिगनर हैं वो ये देखें कि आप शाम को कितने बजे आप खाना छोड़ दो, 7 बजे, 8 बजे, जो भी आपका विंडो है, इस पीरियड में खाइए। उसके बाद आप कुछ भी मत लीजिए, केवल पानी लीजिए, और फिर नेक्स्ट डे सीधा आपको खाना है। तो ये जो मिथ है कि सुबह उठने के साथ कुछ भी मुंह में रखना ज़रूरी है, वो गलत है। आप यू डू योर एक्सरसाइज एवरीथिंग, एंड व्हेन योर बॉडी इज रेडी टू टेक समथिंग, दैट टाइम यू टेक। ऐसा नहीं कि हर समय हमें खाते ही रहना है। यस, यस, वेरी वैलिड क्वेश्चन। यहाँ पे इनका रिप्लाई ये है कि हर एक बॉडी का एक मेटाबॉलिक रेट होता है, BMR होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी कि हर एक की बॉडी का एक मेटाबॉलिक रेट होता है। वो डिसाइड किस चीज़ से होता है, उसमें जेनेटिक्स भी रोल प्ले करते हैं। बेसल मेटाबॉलिक रेट इज योर मिनिमम कैलोरी रिक्वायरमेंट, जो आप खर्च करते हो जब आप कुछ नहीं कर रहे हो। जब आप लाई डाउन कर रहे हो तो आपकी ऑर्गन को फंक्शन करने के लिए जितनी कैलोरीज चाहिए, दैट इज योर BMR। नाउ एवरीबडी हैज देयर यूनिक BMR एंड दैट डिसाइड्स। मे बी मेरा BMR हाई है तो मैं ज़्यादा खा सकती हूँ, क्योंकि नेचर से मुझे गॉड गिफ्टेड हूँ मैं कि मैं ज़्यादा खा सकती हूँ। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल उसको कंपैरेटिव नहीं कर सकते, उसको आप अचीव नहीं कर सकते। यू कैन अचीव द थिंग विच इज देयर इन योर पार्ट इज यू कैन बिल्ड अप योर मसल्स। तो मसल्स, जिसके मसल टू फैट रेशियो से भी BMR डिसाइड होता है। अगर बॉडी में मसल्स ज़्यादा है, फैट कम है, तो उनका BMR हाई रहेगा, और अगर फैट ज़्यादा है, मसल कम है, तो BMR लो रहेगा। एंड अगेन जेंडर वाइज भी ये चेंज होता है। मेल्स का BMR ज़्यादा होता है, फीमेल्स का कम होता है, बाय नेचर। प्रकृति ने ऐसा ही दिया है कि फीमेल्स का BMR कम होता है, तो फीमेल्स कम खा सकती है मेल्स काउंटर पार्ट के मुकाबले। इसके अलावा इसमें एज भी फैक्टर होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, आपका BMR कम होता जाता है। सो आप देखेंगे कि अगर आपने अपनी डाइट सेम रखी है, लेकिन एक एज के बाद आप उसी डाइट में वेट बढ़ने लगता है आपका, उसका रिप्लाई यही है कि एक एज के बाद आपका रिक्वायरमेंट कम हो जाता है, तो आपको अपने डाइट में भी चेंजेस करने ज़रूरी हो जाते हैं। Ma'am, as you said, we have to eat our dinner at least 3 hours before we sleep. Yes. So suppose in those hours if we feel hungry, so we can have fruits. 1-2 दिन हंग्री लगेगा, बट कीप हैविंग वाटर। So no fruits. No fruits, nothing. Fruits will also destroy your fasting. Fasting means fasting, nothing. Only some chia seeds are allowed. मेथी पानी, chia seed, or some herbal water. Green teas are allowed. Yes, sir. मैम, शुरुआत में आपने बिस्किट के बारे में कहा, तो बिस्किट खाने ही नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। उसके बदले आप हेल्दी नट्स खाइए। सर की चाय में शुगर ज़्यादा है और साथ में बिस्किट्स। सर को एक इंडिविजुअल 1-to-1 काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ेगी मुझसे। Yes. What about water retention? Is like if somebody is having water retention, so what is the amount of water they? या अगर पानी रिटेंशन है, अगर बॉडी में वाटर रिटेंशन है, इसका मतलब उनको पानी और पीना है। वाटर रिटेंशन बॉडी कब करती है? जब आप प्रोटीन कम लेते हैं डाइट में, या फिर आप पानी कम लेते हैं या नमक ज़्यादा लेते हैं, तो बॉडी वाटर रिटेंशन करती है। वाटर रिटेंशन को दूर करने के लिए भी आपको पानी ज़्यादा पीना है, ताकि बॉडी वाटर को रिटेन ना करे, और सॉल्ट कम करना है, प्लस आपको डाइट में थोड़ा प्रोटीन बढ़ाना है। पानी का अमाउंट ज़्यादा ही रखना है। So the Yes, ma'am. requirement that you shared, water requirement, Yes, ma'am. according to the Weight. So is it? I mean, it is also said that more than that, water is better. I mean, बेटर, whatever यस मैम, more- दैट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट यू शुड बी हैविंग। आफ्टर दैट अगर आप ज़्यादा लेते हैं, आपकी किडनी ज़्यादा फंक्शन करेगी, ज़्यादा डिटॉक्सिफिकेशन होगा। यस मैम। What about 1 cup coffee?
equally bad. Black coffee equally bad. Black tea. Black tea equally bad. Ma'am, we get to hear a lot about gluten-free cuts. Yeah. So can you throw some light on यस, ग्लूटेन फ्री उनको ज़रूरत है जो लोग ग्लूटेन से इंटॉलरेंट है। और कई बार क्या होता है, अनएक्सप्लेन्ड अगर सिम्टम्स हैं, अगर आपको हमेशा रोटी खाने के बाद हैवी लगता है, आपको पता नहीं चल रहा कि प्रॉब्लम कहाँ है, तो मे बी योर ग्लूटेन इज द इशू। तो गेहूं में एक तरह का प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है ग्लूटेन। वो ऐसा माना गया कि उससे बहुत सारे डाइजेस्टिव इश्यूज आते हैं अनएक्सप्लेन्ड, आपको समझ नहीं आएगा लेकिन आपको आ रहे हैं वो इश्यूज। तो कई बार उसको स्टॉप करने से वो इश्यूज सॉल्व हो जाते हैं। अदरवाइज अगर आपको सूट कर रही है गेहूं की रोटी तो आप खा सकते हैं, अदरवाइज ग्लूटेन फ्री जाने से कोई अलग फायदा नहीं है। ओनली थिंग, कुछ लोगों को ग्लूटेन की इंटॉलरेंस होती है, उसकी लिमिट कुछ भी हो सकती है। कई लोग बहुत ज़्यादा इंटॉलरेंट होते हैं, कई थोड़े होते हैं, उससे कम मतलब ग्रेड हो सकते हैं। सो दैट वे ग्लूटेन फ्री बहुत सारे दूसरे मिलेट्स हैं, जैसे कि बाजरा है वो ग्लूटेन फ्री है, रागी है दैट इज ऑल्सो ग्लूटेन फ्री, अमारांत जिसको राजगीरा बोलते हैं, किनोआ, ये सब ग्लूटेन फ्री हैं। तो इन दैट केस आप इस ग्रेड में स्विच हो सकते हैं। So basically, gluten is not harmful to your body. नॉट हार्मफुल मैम, नॉट हार्मफुल, बट स्टिल जो मैंने दूसरे मिलेट्स बताए जिसमें ग्लूटेन नहीं होता, दोज आर एनी वे बेटर प्रोफाइल देन व्हीट। उनकी प्रोफाइल वैसे भी प्रोटीन की, फाइबर की और अदर मिनरल्स की ज़्यादा बेटर होती है। तो इट्स ऑलवेज बेटर टू गो फॉर दिस मिलेट्स रादर देन योर व्हीट। व्हीट बहुत ही मीडियम ग्रेड का अनाज है। Ma'am, which oil is good for cooking? ऑयल में आप यू कैन यूज ग्राउंडनट, जितने भी सीड के ऑयल होते हैं, नट्स एंड सीड्स के, दोज आर बेटर। मतलब राइस ब्रांड को मैं सबसे नीचे कैटेगरी में मानूंगी। अगर आप ऑयल को तलने के लिए यूज कर रहे हैं तब आप राइस ब्रांड में जाइए, क्योंकि उसका स्मोक पॉइंट हाई होता है। और अगर आप नॉर्मल कुकिंग के लिए यूज कर रहे हैं तो ग्राउंडनट, फ्लैक्स सीड, सेसमे सीड और आपके सीड के जितने भी हैं दोज यू कैन यूज। कोकोनट ऑयल इज ऑल्सो गुड, मस्टर्ड ऑयल इज ऑल्सो गुड। मस्टर्ड ऑयल इज गुड क्योंकि वो भी सीड का ऑयल है। But all oils are from the seed, right? No sir, rice bran is not from the seed. Rice bran Then sunflower, Is not a not a plant. Soybean is also. Soybean is also not from seed. Yes. Ma'am, what is the right time to take the dinner? Dinner time should be as early as possible. 6:30, 7. When the peak time, आपका जो हंगर का पीक टाइम होता है, आप सभी देखे होंगे कि 6:30, 7 होता है, isn't it? उस टाइम पे हम अटरम शटरम खा के अपने डिनर को पोस्टपोन करते हैं 10 बजे तक। दैट्स बैड। सो आपका जब भी हंगर पीक टाइम हो 6:30, 7:30, 8, दैट टाइम यू हैव योर डिनर एंड दैट शुड बी योर फाइनल मील। नथिंग आफ्टर दैट, नो आइसक्रीम। That's a message especially for Bengalis. Oh, lot of Bengali teachers are there, sir. Well, Okay. Yes, yes, ma'am. Telling about the egg, which portion we have to take, white or Yellow, white, both are good, equally good. Whenever you are taking egg, take complete egg. जो लोग वेट लॉस कर रहे हैं उनके लिए डेफिनेटली व्हाइट्स आर बेटर, क्योंकि yolk इज कंप्लीट फैट। लेकिन मैं उनको भी एक yolk जरूर देती हूँ, बिकॉज उसमें भी बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है। Ma'am, daily we can take. यस, डेली यू कैन टेक 1 yolk. Ma'am, समर ऑल्सो यू कैन टेक एग्स। बस आपको अपना पानी का इंटेक ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे ही आप प्रोटीन बढ़ाते हैं और पानी का इंटेक कम होता है, देन वो बॉडी में हीट करता है। maybe boiled or एनी वे यू कैन मेक ऑमलेट, यू कैन टेक बॉइल्ड, एनी वे। बस आपको पानी के इंटेक को इंक्रीज करके रखना है। कोई भी चीज आपको गर्म नहीं करती, केवल उसका पानी का इंटेक अगर आपने उसका शेयर नहीं दिया, देन इट कॉजेज हीट इन योर बॉडी। पानी का शेयर देना जरूरी है। यस, एक दिन में कितना ग्रीन टी लेना चाहिए और व्हाट इज द करेक्ट टाइम ऑफ ग्रीन टी? ग्रीन टीज आप कितने भी ले सकते हैं, उसमें कोई वो दैट्स जस्ट अ वार्म वाटर विद एडेड फ्लेवर्स एंड सम गुड थिंग्स। तो आप कितने भी ले सकते हैं, यू कैन गो अप टू एनी लिमिट, बट इट शुड बी कैफीन फ्री, नॉन कैफिनेटेड। Also it is said that in a meal either you have rice or chapati. यस, इट इज सेट बिकॉज जब ज़्यादा चीज़ें लेंगे तो सबकी क्वांटिटी ओवरऑल बढ़ जाएगी। अदरवाइज देयर इज नो सच रीज़न, लॉजिक नहीं है। आप दोनों चीज़ 50-50 कर सकते हैं, बट मैंने हमेशा देखा है कि जब आप ज़्यादा चीज़ें रहती हैं तो ओवरऑल आपकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है। प्योर घी इज गुड, हाई इन सैचुरेटेड फैट, सो यू हैव टू यूज इट इन पोर्शन कंट्रोल। यू जस्ट कांट गो ऑन यूजिंग घी एज पर योर विश। रुजुता देवेकर की बातों में नहीं जाना है।
मॉर्निंग में अगर 3 ग्लास वार्म वाटर के साथ हनी मिक्स करके नो हनी, नो जैगरी इन द अर्ली मॉर्निंग. आप केवल लेमन लीजिए, दैट विल बी बेस्ट. नो हनी, नो जैगरी इन द अर्ली मॉर्निंग. लगा सकते हैं मैम, लगा सकते हैं. यस मैम. I can't hear. Yes. Rice. Rice is having less fiber than chapati. Yes, ma'am. ओमेगा, yes, very good question. ओमेगा के सोर्सेस हमारे वेजिटेरियन डाइट में बहुत कम होते हैं. फ्लैक्स सीड इज वन सोर्स एंड वॉलनट्स. अदरवाइज फिश ऑयल सप्लीमेंटेशन. Brown rice is good, better than white rice, but can't say it is the best. Better than white rice because it is less processed, but has equal amount of carbohydrate. Equal amount of carbohydrate like rice, but better than rice because it has more fiber in it. Ma'am, Yes, sir. actually whatever you are saying, हम तो सब लेते हैं. My weight is around 65. Okay. I want to increase my weight. Okay. Sir, same rule. Sir, same rule applies to you. See, whosoever wants to increase her or his weight, same rule applies to them. उनको भी प्रोटीन बढ़ाना है, उनको भी फैट अच्छे वाले लेने हैं, उनको भी शुगर इन कंट्रोल लेना है. So the same rule applies to you. Same exercise, same sleep, same diet. Only the proportion will matter. So proportion will be given to you as per your height, weight, gender and physical activity. The diet chart is always customized. It is tailor-made as per your height, weight, gender and physical activity. So that is a calculated one. You come to know about your daily requirement. Yes, sir. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. You can go on eating white rice. Yes, white rice is the best for gluten intolerant people. It suits the best because quinoa has a lot of fiber and other protein that can also that may also not suit you. So in that case, you can go on taking white rice. दिन में बिल्कुल नहीं सोना चाहिए, रात को सोना चाहिए and that too only 8 hours. अगर ज़्यादा सोया तो लेथार्जी आ जाएगी बॉडी में. अगर कम सोया तो मे बी यू विल नॉट गेट द इनफ रिपेयरमेंट इन योर बॉडी. रिपेयर काम होता है रात को. सो दिन की नैप बिल्कुल नहीं लेनी है, वो पेट को बाहर कर देती है. यस यस सर. ऐसा नहीं कर सकते हैं जो आपने बताया लेना है, जो नहीं लेना है. तो जो फूड सेफ्टी सिक्योरिटी का जो अथॉरिटी इंडिया का बना हुआ है उससे इन सारी चीजों को बाहर कर दिया जाए. बिल्कुल बिल्कुल, वी आर इन द प्रोसेस कि लेकिन देखिए कुछ होता नहीं है. अभी तंबाकू के ऊपर लिखा रहता है इट किल्स, फिर भी लेने वाले तो लेते ही हैं. एक्चुअली बिजनेस इज ऑल्सो देयर. तो जितना भी सुपरमार्केट में आप देखते हैं मैगी है, पास्ता है, वो डोनट्स हैं और स्प्रेड्स हैं बहुत तरह के, आप लोग उसको मत परचेस करिए. मैं तो देखती हूँ कि सबकी उस ट्रॉली उसी से भरी रहती है. अब शर्मा सर बिस्किट नहीं खाएंगे आज से. Yes, yes, sir. Multivitamin tablets you are asking? Okay, so multivitamin tablets you don't require if you are taking proper care of your diet. If you are taking lot of veggies and fruits in your diet, you don't require multivitamin tablets. ओमेगा 3 की जरूरत होती है. ओमेगा 3 भी आपको मिल जाता है नेचुरल सोर्सेज से. ओमेगा 3 का इंटेक आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, सॉरी एट वंस. अगर ओमेगा की कैप्सूल ले रहे हैं तो एट वंस अ डे. आई एम नॉट श्योर. दैट ओमेगा कैप्सूल कम्स, दैट इज वंस अ डे. फिश ऑयल, सैल्मन ओमेगा, ओमेगा 3. यस. Sugar, yes. But the jaggery is Better than iron. Yeah, that I told you that jaggery is less processed than sugar. दोनों गन्ने से बनती है, गन्ने की गुड़ है. तो गुड़ से के बाद वाला स्टेप होता है शुगर बनने का. गुड़ को जब और रिफाइन किया जाता है तो शुगर बन जाता है. सो गुड़ में थोड़े से गुण हैं, जैसे उसमें आयरन है,
लेकिन बाद में वो प्रोसेस होकर शुगर बन जाती है. सो गुड़ में कार्बोहाइड्रेट और बाकी चीज़ें उतनी ही हैं. सो हम उसको एडवांटेज में नहीं ले सकते कि हम गुड़ कितना भी यूज़ कर सकते हैं. इट इज़ बेटर देन शुगर, बट यू कैन नॉट गो फ्री ऑन जैगरी. And how will a vegetarian diet get iron from? Iron, there are lot of sources of iron, plenty of sources. You know, sprouts has iron, kala chana, then all the green leafy vegetable has iron. But the green leafy vegetables, I think it requires folic acid for better. It requires, every iron requires vitamin C to get absorbed. So when you add, मैं अभी आपको green smoothie के बारे में बता रही थी. When you take पालक का जूस, पालक पुदीना धनिया पत्ती का जूस, and you add आंवला to it, or maybe you will add lemon to it, it gets easily absorbed in your body. क्योंकि जो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर होता है और जो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर होता है, दोनों का स्ट्रक्चर सेम होता है सर. सो जितनी भी चीज़ें क्लोरोफिल में रिच है, ग्रीन है, दैट गोज इन द बॉडी एंड मेक्स हीमोग्लोबिन. Yeah. You can go for that time. You can go for lemon. If it is homemade amla powder. Yes, you can use, but don't add sugar and salt to it. And like in place of ghee, we eat homemade butter. Yeah, you can use that. And what are the sources of B12 for vegetarians? वेजिटेरियन में B12 के सोर्सेज ओनली एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मिल्क एंड कर्ड. क्योंकि प्लांट बेस्ड में कोई भी B12 नहीं मिलता है. प्लांट ओरिजिन में B12 इज नॉट देयर, केवल एनिमल ओरिजिन प्रोडक्ट्स में ही होता है. सो ओनली कर्ड एंड योर मिल्क इज देयर. But what if one is a vegan? How does the person? या तो ही हैज़ टू टेक सप्लीमेंट ऑफ B12 देन. जो लोग वीगन हैं उनको B12 और बहुत सारी और भी चीज़ों के सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं. मैम रात को दूध पीना ठीक नहीं है, लोग करते हैं. ठीक नहीं है. एकदम बेड टाइम जो दूध भर के ग्लास पी लेते हैं, दैट्स अ लोड टू योर बॉडी, बिकॉज मिल्क इज अ कंप्लीट फूड. इट हैज़ लॉट ऑफ प्रोटीन, फैट, एवरीथिंग. सो डाइजेशन में अगले 2 घंटे आपके बॉडी के उसमें वेस्ट हो जाते हैं. तो बॉडी डू नॉट गेट स्विच्ड टू योर रिपेयर मोड. So when should we have? You should have it 3 hours before your sleep. Anything 3 hours before your sleep. Yes, sir. Would you like to explain about the night chat of the diabetes patient? You have to come to me personally for that, because diabetes is altogether different, disease to talk about. And I will be happy if sir invites me for one more session for PCOS and diabetes, which I saw in the form. A lot of people talked about PCOS and diabetes, so I'll talk on that. तो basically जो diabetics होते हैं उनको भी carbs control करने पड़ते हैं. So in that way, individual diet chart can be prepared for that person. What about if one is low in calcium? Yes, there's a lot of sources of calcium in our diet. Nuts are rich source of calcium, and then banana, all white stuff, Til is a very good source of calcium. Alsi. But it is said that if I have low calcium in my body, then it cannot be repaired. It can just be. Yes, ma'am. It can be repaired. Yes, it can be repaired. Yes. Many questions poured in, never happened in any of the other workshops. So conscious teachers here, and indeed a beneficial sharing, ma'am, and we would definitely benefit from that, because of our, like many times we don't put our health first, and this is sedentary lifestyles and maybe the lifestyle disorders we face, and that might affect in a later stage in our lives. So thanks for that wonderful sharing, and we would definitely benefit from that, I guess. And now the man behind all this, because it's his wish, we can really ensure a good health. So I request Principal Sir to please propose the vote of thanks and present memento to ma'am. Thank you, sir. Thank you for sharing so many things, and I've been listening to this, that too much of something is bad. Yes, sir. In little quantities is probably okay, but that also depends on the balance of what those quantities are, right? And I think it's very important for a teacher to be healthy, because our mind and body both are used in our professions every day, right? So I hope that all of us will take away a lot of things back home. Okay, think about it,
And it's all a question of balance. What we eat and what we don't eat. But there's one surprise. I can't live without biscuits. But now on the sir will see. Well, now I will have to see. Yes. So I have to empty my tins. I invite all of you for that. Right? So thank you very much. I hope we will invite you again for something specific, as you said, about diabetes. But I really hope that we keep the connect. I'm sure we will watch your YouTube channel, and yeah, this dialogue has to continue, because, as you said, changing habit takes time and effort. Yes, sir. Yes, sir. Right? And we don't have time. Yes, sir. So therefore, it is a lot of effort that we have to make ourselves fit. Yes, sir. Thank you very much for coming to NH World School, and very small. Can I do my side? Would you like to make this Yes, thank you. in our sculpture classes?